I take the example of third butyl bromide. This is a nucleophile and this is third butyl bromide. So this nucleophile will substitute this halide ion in this third butyl bromide and we get product CH3OH, and this halide ion will be substituted. We get third butyl alcohol. This is third butyl alcohol. And if we go for the mechanism of this reaction, then it takes place in two steps. A step-wise description of a chemical reaction is called its mechanism. जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को स्टेप्स में एक्सप्लेन करते हैं तो वो उसकी मैकेनिज्म कहलाती है. तो ये जो स्टेप, ये जो मैकेनिज्म है, इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स. इन फर्स्ट स्टेप carbocation is formed. Formation of carbocation. So when this third butyl bromide release this halide ion, this you keep in mind, SN1 mechanism proceeds in protonic medium, means either in presence of alcohol or in presence of any acid which can furnish proton, और कोई और भी स्पीशीज हो सकती है जो प्रोटॉन फर्निश करे, तो उनकी प्रेजेंस में जनरली SN1 रिएक्शन ही फेवर्ड होती है. सो प्रोटॉनिक मीडियम में क्या होगा देखिए. इन फर्स्ट स्टेप this third butyl bromide releases halide ion and forms third butyl carbocation, or this is 3-degree carbocation. And in second step, the nucleophile will attack on this carbocation. I take this carbocation in this way. Orientation of carbocation I take in this way. I am trying to show that this nucleophile can attack either way, either from this side or from this side to the carbocation. When OH will attack from the right hand side, this product is formed, and when OH is attacked from left hand side, then this product is formed. On paper we have decided that those compounds in which OH group is present on left hand side, they rotate PPL यानी कि plane polarized light in anti-clockwise direction, and such compounds are called levorotatory, or in short it is called L form. And those compounds in which OH group is present on the right hand side, on paper we have assumed that they rotate PPL, or plane polarized light, in clockwise direction, and such form is called dextrorotatory, or in short we can write is D form. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो दोनों तरफ से पॉसिबल है. This is carbocation of alkyl halide.
Step 1 is a fast step. Sorry, step 1 is the slow step, and step second is fast step. As you all know, molecularity of a chemical reaction is determined with the help of slowest step, and the rate of chemical reaction is also determined with the help of slowest step. So out of first and second, the first step is slow, and in slow step only one molecule of alkyl halide is participating. That's why the molecularity of this reaction is 1, and that's why it is called substitution nucleophilic यूनिमोलिकुलर। ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाएगी। और किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है इट डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप, और ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द स्लो वन, and in this slow step only alkyl halide is participating. That's why the molecularity of this reaction is 1, and that's why it is called substitution nucleophilic unimolecular, that is SN1 reaction or SN1 mechanism. ये जो D form है it will rotate PPL in clockwise direction and L form rotate PPL in anti-clockwise direction, and the probability of formation of D and L form is 50-50%. Means in solution, in the product, in solution 50% D form and 50% L form is formed, and such a mixture of 50% D and 50% L is known as racemic mixture. जब आप 50% डी एंड 50% एल को आपस में मिक्स कर देंगे, सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर, और जो ओवरऑल रेस्पॉन्स है टुवर्ड्स पीपीएल दैट विल बिकम जीरो, क्योंकि ये जो 50% है इट विल ट्राई टू रोटेट पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस 50% विल ट्राई टू रोटेट पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, both will cancel out the effect of each other, and the overall the rotation, optical rotation will be zero, or you will get a racemic mixture. Racemic mixture is a composition of 50% D and 50% L form. So it is said that SN1 mechanism proceeds through racemization, यानी कि अगर रिएक्शन SN1 के थ्रू होगी तो रेसेमाइजेशन होगा। रेसेमाइजेशन का मतलब हुआ कि विल गेट रेसमिक मिक्सचर, जिसमें 50% डी फॉर्म रहेगी और 50% एल फॉर्म रहेगी। एक थोड़ी सी बात यहाँ पर और सीखते हैं, यहाँ पर जो प्रोटॉनिक मीडियम है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए मैं आपको थोड़ा रफली बताऊं, प्रोटॉनिक मीडियम क्या करेगा, जो यहाँ पे प्रोटॉन अवेलेबल होगा H पॉजिटिव, वो इस Br नेगेटिव को रिलीज होने में हेल्प करेगा। हैलोजेंस की जो एफिनिटी है प्रोटॉन्स के लिए ज़्यादा होती है, तो अगर आपको मैं थोड़ा सा मिसगाइड करूं तो ये H बॉन्ड Br बन जाएगा। H बॉन्ड Br स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये जल्दी से Br नेगेटिव H पॉजिटिव संग चला गया, HBr बन गया और यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया, तभी तो दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन जो सही आंसर हमें लिखना चाहिए, दैट लैंग्वेज इज this we require energy to break this C bond Br, and this energy to break C bond X or C bond Br is obtained by the solvation energy। यानी कि ये जो Br नेगेटिव जब टूट करके सॉल्यूशन में आ गया तो इसके चारों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप कर लेंगे, और ये आयन ये थोड़ा सा इस तरह से अपने आप को ओरिएंट करेंगे, जो पॉजिटिव एंड है वो Br नेगेटिव को फेस करे, राइट, इस तरह से। ये तो एक वाटर मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे कई सारे वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं।
तो ये जो इंटरेक्शन डेवलप हुआ इन बिटवीन वी आर नेगेटिव एंड द प्रोटॉन कह लो या वाटर मॉलिक्यूल्स कह लो जो कि पोलर है, तो इन इंटरेक्शंस में दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और इस आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो डेवलप होगा उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। और इस सॉल्वेशन एनर्जी का जो अमाउंट है दैट विल बी मोर देन द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी बॉन्ड बी आर। सी बॉन्ड बी आर को तोड़ने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, और जो बी आर नेगेटिव टूट करके सॉल्वेशन में जाएगा वो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर के अगर सॉल्वेशन एनर्जी की अमाउंट सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड एंथैल्पी से ज़्यादा है तो ये सी बॉन्ड एक्स आसानी से टूट जाएगा। तो यही पर्पस है प्रोटॉनिक मीडियम में रिएक्शन कराने का, क्योंकि जो सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन से एनर्जी रिलीज होती है दैट इज मोर देन द बॉन्ड एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सी बॉन्ड एक्स। Now we come to the main point, that is about the reactivity of alkyl halides towards SN1। तो आप देख सकते हैं इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टेकन tert butyl bromide and on release of Br negative it gives tertiary carbocation। As you all know, due to hyperconjugation, the stability of tertiary carbocation is more than secondary and then primary। ये क्लास 11 में पढ़ा है हमने। ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अगर यहाँ पे H होता तो 6 बनते, और अगर CH3 होता तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते। मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, more will be the stability of the carbocation। So tertiary carbocation will have the more stability, और ये more stability की वजह से जो tertiary alkyl halide है उसकी टेंडेंसी 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होने की, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होने की सबसे ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं जो रिएक्टिविटी है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड की सबसे ज़्यादा होगी टुवर्ड SN1, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, क्योंकि जो टर्शरी कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड जल्दी से कोशिश करेगा हैलाइड आयन को रिलीज करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बिल्कुल उल्टा ऑर्डर है देन द SN2। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन SN1। और अगर आपको याद आ रहा हो हमने SN2 में आपको क्या बताया था, SN2 में दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। SN2 में क्या देखते हैं, ease with which a nucleophile can approach to the carbon atom, जिससे उसे बॉन्ड बनाना है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेप। सो एज वी ऑल नो टर्शियरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई tertiary alkyl halide will have a higher tendency to release halide ion and to form more stable carbocation। तो दो तीन बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है। फर्स्ट, SN1 proceeds in protonic medium, it favors in protonic medium। Number two, it takes place in 2 steps। Number three, the first step is slow in which only alkyl halide is participating, that's why it is a unimolecular reaction। Number four, the product will be the racemic mixture in which 50% D and 50% L form will be obtained। Or it can also be said that SN1 proceeds through racemization। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं, देखिए वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारे पास बेंजाइल हैलाइड है, बेंजीन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच रहता है बच्चों, वो कैसा होगा, बेंजाइलिक कार्बन। ये बेंजाइलिक कार्बन है, और इससे अगर Br आ गया तो इट इज अ बेंजाइलिक हैलाइड। तो जो बेंजाइलिक हैलाइड है, आप जैसा ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इट इज अ 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। तो लोग सोचते हैं कि इसकी जो रिएक्टिविटी है 1 डिग्री होने की वजह से SN1 में ज़्यादा होनी चाहिए, SN2 में ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि SN2 का ऑर्डर क्या लिखा था आपने, 1 डिग्री, greater than 2 डिग्री, greater than 3 डिग्री। बट
exceptionally, this benzylic halide has more stability towards SN1 because after the release of halide ion, it forms benzylic carbocation, which is highly stabilized due to resonance. This benzylic carbocation is highly stabilized due to resonance. तो इस बात को सब बच्चे ध्यान रखेंगे, भले ही बेंजाइलिक हैलाइड प्राइमरी हो, लेकिन रेजोनेंस की वजह से इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि हैलाइड आयन को रिलीज करके बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए, जो कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है। मैं आपको उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। देखिए, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है बेंजाइलिक कार्बन पर, CH2 आ गए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, उसको फुलफिल करने के लिए ये पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचेंगे वहां पे चार्ज नेगेटिव, और जहां से दूर जा रहे हैं वहां से चार्ज नेगेटिव। देखिए ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे रहेगा, देयर इज नो चेंज। पर यहाँ पर C डबल बॉन्ड C डेवलप हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया। दिस इज C बॉन्ड H, दिस इज C बॉन्ड H, और अल्टीमेटली यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने -R इफेक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है ऑर्थो पोजीशन पर, उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा, एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड कम्स हियर, दिस इज C डबल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स हियर, then this pi bond will try to fulfill the electron deficiency at para position. Ultimately positive charge will come here, double bond will appear here, this is double bond CH2, and in the last this pi bond will try to compensate the electron deficiency as ortho dash position, and you will see again you will get the first structure। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड विल अपीयर हियर, दिस इज। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के, जिसकी वजह से बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कैसा हो गया, हाईली स्टेबल हो गए। और भले ही ये प्राइमरी है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी कहाँ होगी, टुवर्ड्स SN1। ये SN1 के थ्रू रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखेगा। तो कॉम्पिटिशंस में तो भरमार है बेंजाइलिक वाली, मतलब अगर SN2 SN1 से रिएक्शन आ रहा है तो बेंजाइलिक को वो जरूर पूछते हैं, मैंने देखा है ऐसा। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए कि बेंजाइलिक के आपको SN1 से क्वेश्चन काफी मिलेंगे। अच्छा, अगर ये हो जाए सेकेंडरी तो स्टेबिलिटी और बढ़ गई, ये हो जाए टर्शरी तो जो कार्बोकैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी ड्यू टू हाइपरकॉन्जुगेशन। तो प्राइमरी अगर आपके पास बेंजाइलिक हैलाइड है तो ध्यान रखेंगे वो प्राइमरी जरूर है, लेकिन उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो SN1 रिएक्शंस में ज्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरीके से इन केस ऑफ एलाइलिक हैलाइड, दिस इज एलाइलिक ग्रुप, और आपने यहाँ पे Br लगा दिया, दिस इज एलाइलिक ब्रोमाइड। तो जब ये फर्स्ट स्टेप में हैलाइड आयन रिलीज होगा SN1 मैकेनिज्म में, तो ये एलाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, और इस एलाइलिक कार्बोकैटायन में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी
ड्यू टू रेजोनेंस। क्या होगा देखिए, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बोल सकते, ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बॉन्ड विल डेवलप, और जहां से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, यहाँ से डीलोकलाइज हो रहे हैं कार्बन, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो एलाइलिक कार्बोकैटायन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन रहता है, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो एलाइलिक, ये 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड है देखिए आपके सामने, तो भले ही ये 1 डिग्री हो, लेकिन ये हैलाइड आयन को रिलीज करके मोर स्टेबल एलाइलिक कार्बोकैटायन बनाता है, और इसीलिए ये भी SN1 के थ्रू ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। SN1 SN2 दोनों से पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ज्यादा फेवर्ड किससे होगा, SN1 से होगा, क्योंकि SN1 में जो कार्बोकैटायन अगर स्टेबल बनेगा तो ये हैलाइड आयन तेजी से रिलीज हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। और सेकंड स्टेप तो फास्ट था, जिसमें OH नेगेटिव तेजी से इस पर अटैक करके अल्कोहल को फॉर्म कर लेगा। तो इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये बेंजाइलिक और एलाइलिक स्पेशल केसेस हैं। बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकैटायन अगर कहीं बन रहे होंगे तो वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही होगी। जैसे ये इस क्वेश्चन का आंसर आज पूछ रहा था कोई बच्चा, मैं देखिए फिर से आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन था वो। ये था आपके पास साइक्लोहेक्सीन, और जब इसे अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कराएंगे हम, या लाइट की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कराएंगे, सो इट इज अ टाइप ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो Br यहाँ भी आ सकता है, 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 लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा वो कौन सा बनेगा, जिसमें एलाइलिक, कंपाउंड बन रहा हो। देखिए एलाइलिक है, Br बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। हालांकि साथ में ये भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगा, लेकिन एलाइलिक जो हैलाइड है उसकी स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस ज्यादा हो जाती है, तो ये मेन प्रोडक्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा, एज ए माइनर प्रोडक्ट। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। एलाइलिक और बेंजाइलिक के बारे में बहुत सतर्क हो जाइए। काफी रिएक्शन की मैकेनिज्म है जिसमें बेंजाइलिक या एलाइलिक बन रहे होंगे, तो वही आपका मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आउट ऑफ C6H5CH2Cl and C6H5CHCl, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। दो कंपाउंड दिए गए हैं आपको, this is C6H5CH2Cl, this is benzylic halide, or it is 1 degree benzylic halide, and this is also benzylic halide, but it is 2 degree benzylic halide, right? It is 2 degree benzylic halide, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। अब इसमें ये नहीं पूछा है कि SN2 से या SN1 से, तो दोनों बातें हमें कंप्लीट करके लिखनी होंगी। ये जो बेंजाइलिक हैलाइड है, इट इज मोर फेवर्ड बाय SN1 रिएक्शन, क्योंकि 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री बेंजाइलिक है। यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे, काफी बन जाएंगे, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, तो SN1 में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ये दोनों ही कोशिश करेंगे। अब आपका आंसर देखिए, SN1 से अगर रहेगा तो इट इज फेवर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा उसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इस रिंग के साथ भी और इस रिंग के साथ भी। लेकिन अगर SN2 से होगा तो जो फर्स्ट कंपाउंड है इट इज मोर फेवर्ड।
So out of C6H5CH2Cl and this which is more easily hydrolyzed. So your answer should be like this. If reaction is favored through SN1 mechanism, this compound is hydrolyzed first, यानी कि Cl negative हट करके OH आ जाएगा. And if reaction is favored by SN2, या reaction proceeds through SN2, so this compound will hydrolyze faster. आपको आंसर किसी एक का देना होगा, आपको आंसर किसी एक का देना होगा. इसमें से कौन ज्यादा हाइड्रोलाइज्ड होगा तेजी से, तो आप बता देंगे दिस विल हाइड्रोलाइज फास्टर थ्रू SN1 mechanism as it forms more stable carbocation, राइट. और अगर SN1 के SN2 के उससे बताना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, इट इज हाइड्रोलाइज फास्टर because through SN2 mechanism because it is a primary benzyl halide. तो आपसे यहाँ पे इन्होंने पूछा नहीं है SN2 से या SN1 से, तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी से ही बता सकते हैं. इट इज मोर फेवर्ड थ्रू SN1 and it is more favored through SN2. ये जो मैं बात आपको बता रहा था SN1 के लिए, वो यहाँ NCERT में लिखी हुई है. Allylic and benzylic halides show high reactivity toward SN1 reaction. The carbocation, यानी कि allylic और जो benzylic carbocation thus formed gets stabilized through resonance as shown below. ये मैंने आपको बना के दिखाए थे अभी, तो याद रखेंगे भले ही allylic और बेंजाइलिक 1 डिग्री हो, लेकिन उनका जो मैकेनिज्म है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट विल बी फेवर्ड बाय SN1. और एल्काइल हैलाइड्स के लिए बात SN2 और SN1 दोनों में सेम रहेगी. जैसे वहां पर I बेटर लिविंग ग्रुप था, ऐसा यहाँ पर भी I बेटर लिविंग ग्रुप ही है. तो एल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो यही रहेगा, Ri ग्रेटर देन RBr, ग्रेटर देन RCl एंड ग्रेटर देन RBr. की जो सॉल्वेशन बात थी वो देखते हैं. स्टेप फर्स्ट इज द स्लोएस्ट स्टेप इन SN1 mechanism and it involves C bond Br bond breaking, for which energy is obtained through solvation of halide ion with the proton of protic solvent. ये की लाइन है. इस लाइन को लिखने के लिए बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स चाहिए. इस बात को लोग एक्सप्लेन तो करते हैं लेकिन टूटी फूटी लैंग्वेज में, और यहाँ पे बहुत ही कम वर्ड्स में एग्जैक्ट लाइन लिखी गई है. इट इन्वॉल्व्स द C bond Br bond breaking, for which the energy is obtained through solvation of halide ion with the proton of protic solvent. राइट. बाकी सारी बातें आपसे हो रखी हैं. ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन in SN1, greater will be the ease of formation of alkyl halide and faster will be the rate of reaction. So in case of alkyl halide, if it is tertiary, undergoes SN1 reaction very fast because of the high stability of 3 degree carbocation. तो ये देखिए इन्होंने सम अप किया SN2 SN1 का. दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2, टर्शरी, सेकेंडरी, हेल्प प्राइमरी और ECS6, ये इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर है. और SN1 के लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. SN1 में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी किसकी होगी, टर्शरी की. SN2 में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी किसकी होगी, प्राइमरी की या मिथाइल हैलाइड की.